हाँ जी, गुड आफ्टरਨੂਨ। ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡਲੀਵਸ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੇ ਕਿ ਮੈਂਡਲੀਵਸ ਟੇਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂਡਲੀਵਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਲੋਅਰ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਇਰ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਰੁੱਪਸ, ਔਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪੀਰੀਅਡਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਟੋਟਲ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 8 ਗਰੁੱਪਸ ਸੀਗੇ, ਔਰ 8 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 7 ਗਰੁੱਪਸ ਦੋ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ 7 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੈ 8th ਗਰੁੱਪ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ। 8th ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 3 ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ NCERT ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਆ ਬੁਰਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਨਿਊਲੈਂਡਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਟਰਾਇਡਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੱਕ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਡੋਬਰੀਨਰਸ ਟਰਾਇਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 3 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ 3 ਦੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਾਫੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਸਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂਡਲੀਵ ਮਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਸਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹਲੇ ਡਿਸਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਡਿਸਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਇੱਕ ਆ ਸਿਲੀਕॉन, ਇੱਕ ਆ ਬੋਰਾਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਕਟ ਕਰੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਕਟ ਕਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਸਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਇਆ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਗਲਤ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦਾ ਟੇਬਲ ਮਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਿਸਟਮ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਐਮਟੀ ਸਪੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਐਮਟੀ ਸਪੇਸਿਸ ਨੇ, ਇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗਰੁੱਪ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਰੁੱਪ 17 ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਲੋਜਨਸ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦਾ ਟੇਬਲ ਮਾਸ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਈਸੋਟੋਪਸ। ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਚ 3 ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਅਮ, ਡਿਊਟਰੀਅਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟੀਅਮ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਸੋਚੋ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵੀ 3 ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਦਾ ਟੇਬਲ ਮਾਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਰਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ?
ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਅਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਊਟਰੀਅਮ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰੀਟੀਅਮ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਉਲਟੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਉਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਅਗਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਜੀ ਗਲਤ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਸਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੱਖਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚ? ਮੈਰਿਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਉਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂਡਲੀਵਸ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਊਂਗਾ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੇ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਰੋਮਨ 'ਚ ਗਰੁੱਪਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੇ 7 ਗਰੁੱਪ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-2 ਗਰੁੱਪਸ ਸੀਗੇ, ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ A ਇੱਕ B। ਮਤਲਬ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 1A 1B ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 2A 2B ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 3 ਦੇ ਅੰਦਰ 3A 3B, 4 ਦੇ ਅੰਦਰ 4A 4B, 5 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਪ ਟੂ 7। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗਰੁੱਪਸ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, 3 ਕਾਲਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਲੇਟਰ ਔਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਨ ਟੋਟਲ 9 ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, 7 ਆਹ ਨੇ, 8ਵਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਗਰੁੱਪ, 9। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 8 3 ਕਾਲਮਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਸੀਗਾ, ਅਪ ਟੂ 7 2-2 ਕਾਲਮਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਵਰਗੇ ਟੇਬਲ ਵਰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਪਣੇ 18 ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਪ ਟੂ 7 2-2 ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 14 ਗਰੁੱਪਸ ਹੋ ਗਏ। 7 ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ 2-2, 2 ਤਾਂ ਇੱਥੇ 14 ਹੋ ਗਏ। 3 ਗਰੁੱਪਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੇ, 14 ਔਰ 3 17 ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, 18, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਟੋਟਲ 18 ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਨਰਟ ਗੈਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਫਟਾਫਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਲਿਖੀ ਜਾਇਓ। ਪਹਿਲਾ ਲਿਖੋ, he simplified and systemized study of elements. He simplified and systemized study of elements. ठीक है। दूसरा पॉइंट, some vacant spaces were left in Mendeleev's table
some vacant spaces were left in Mendeleev's table for discovery of new elements having similar properties. For discovery of new elements having similar properties. ठीक है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ याद होगा 10th 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੇ ਏਕਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ EKA है ना। ਏਕਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਨੈਕਸਟ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹਨੇ ਟੋਟਲ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਲਿਖ ਲਓ ਏਕਾ ਸਿਲੀਕॉन यानी कि नैक्सट टू सिलिकॉन। होर इन्हें जगह छड्डी सीगी एका एलूमीनियम नैक्सट टू एलूमीनियम, एका बोरॉन और एका मैंगनीज Mn। ठीक है। बाद जो एलीमेंट्स लभे गए सिलिकॉन तो अगला एलीमेंट्स केड़ा लभ्या गया जर्मेनियम Ge। एलूमीनियम तो अगला एलीमेंट केड़ा लभ्या गया गैलियम Ga। बोरॉन तो अगला स्कैंडियम Sc। ਇਹਦੇ ਤੇ क्वेश्चन आ जाता होंगे कि इका सिलिकॉन कौन है। ठीक है। तो 4 ऑप्शंस दे के तो ये नहीं है भी बस हाँ नाम ही रट लें। एक सिलिकॉन होएगा जर्मेनियम किहदे कॉरेस्पोंडेंट कौन है ये भी याद रखना है। ठीक है ना। जिवें सिलिकॉन तो अगला जिहड़ा लभ्या गया सी उहदा नाम सी जर्मेनियम। एलूमीनियम तो अगला जिहड़ा लभ्या गया सी उहदा नाम सी गैलियम। एवें नाम याद होने चाहिए ने प्रॉपर। पहले 3 इंपॉर्टेंट है, 4th तुसीं शायद नहीं भी सुना होगा। मैंगनीज तो नैक्सट टेक्नीशियम TECHNETIUM टेक्नीशियम भी बोल सकते तुसी। ठीक है ना। तो उन्हें सिलिकॉन तो नीचे कोई एलीमेंट फिट नहीं हो रहा सी तो उन्हें जगह छड्ड दी। वो कहता भी यार इत्थे ना एलीमेंट फ्यूचर च लभे जाणगे तो वो इत्थे बिल्कुल अपने आप फिट हो जाएंगे। उन्हें नाम देता उस जगह को एका सिलिकॉन। सिलिकॉन तो अगली जगह, अगली एज इन हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल। ठीक है ना। सिलिकॉन तो नीचे, एलूमीनियम तो नीचे, इस तरह नाल उन्हें जगह छड्डी तो जो एलीमेंट्स लभे गए तो उस जगह के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही तरह नाल फिट आ गए। सही है जी। तीसरा पॉइंट। दूसरा सीगा भी उन्हें जगह छड्डी, पहला सीगा उन्हें सिस्टम च अरेंज किया। तीसरा पॉइंट लिखो फटाफट। ही ऑल्सो करेक्टेड एटॉमिक वेट्स of some elements। he also corrected atomic weights of some elements। कुछ एलीमेंट्स इदां दे सीगे जिन्हां दा एटॉमिक वेट उस टाइम ते सही कैलकुलेट नहीं किया गया सी। मैंडलीव ने किवें सही किया अगैन सही जगह ते फिट नहीं हो रहे सीगे तो उन्हें प्रॉपर स्टडी की। ਇਹਦੇ अंदर एक वैसे बहुत सारे एलीमेंट है आप एक दो याद करने हैं। फॉर एग्जाम्पल बेरीलियम। ठीक है। हुण जिवें बेरीलियम का वेट पहला 13.5 मानते सीगे पर मैंडलीव ने इन्हू सही कराया 13.5 नहीं होंदा। बेरीलियम का वेट होंदा 9 एटॉमिक वेट 9। ठीक है। तो 13.5 इनकरैक्ट वेट सीगा पुराना। उन्हें इनू चैक करके करैक्ट कराया 13.5 की जगह पर यदा वेट कराया 9 जिहड़ा कि बिल्कुल सही है। ठीक है। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी जी लाइन ये अंदर ही लिख लो। ही ऑल्सो करेक्टेड द वेट्स ऑफ यूरेनियम U, बेरीलियम, गोल्ड, प्लैटिनम एंड इंडियम IN इंडियम। He also corrected the atomic weights of uranium, platinum, gold, indium and beryllium Be। ठीक है। 5 एलीमेंट्स होर ने जिन्हों का उन्हें सही कराया। बेरीलियम तो चलो आप लिखवा ही लिया। तो यूरेनियम, इंडियम, गोल्ड, प्लैटिनम 4 होर ने जिन्हों का उन्हें एटॉमिक वेट सही कराया।
ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਸਹੀ ਕਰਿਆ, ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਕਿਹਦਾ ਸਹੀ ਕਰਿਆ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस मैं पहला ही दस चुके हैं, बस हम पॉइंट लिखने ने अपन ने। पहला पॉइंट लिखो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन is not fixed। दूसरा पॉइंट, no separate position is given to isotopes। no separate position is given to isotopes। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स according to their mass। इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर मास। हुण जिवें आर्गन का जिहड़ा एटॉमिक वेट हुंदा वो 40 हुंदा है, पोटैशियम का 39 हुंदा है, तो जे मेंडलीव के अकॉर्डिंगली चलीए तो 39 वाला पहला आऊगा तो 40 वाला बाद दे विच आऊगा, लोअर टू हायर मास वाली वधांगे ना। बट मेंडलीव ने उल्टा करिया, मतलब नोबल गैस आर्गन पहला आना चाहिए सीगा, मैं आर्गन नूं पहला रखिया, पोटैशियम नूं बाद च रखिया, तो यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। जद कि आर्गन का मास तो ज़्यादा है तो उन्होंने बाद च रखना चाहिए। तो ये भी आप 2-3 ही फेमस है जेडे उन्हें करैक्ट करे, जेडे वो गलत होए तो आप उन्होंने याद रखांगे। ठीक है, जिवें पहली एग्जाम्पल तो आही लिख लो, आर्गन पोटैशियम, आर्गन पहला आ रहा है, पोटैशियम बाद च आ रहा है, जबकि उल्टा होना चाहिए सी, आर्गन का वेट 40 है, पोटैशियम का 39 है। ठीक है, ये अंदर एक एग्जाम्पल जी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कोबाल्ट निकल। ये अंदर कोबाल्ट का वेट ज़्यादा होंगे तो भी इनू पहला रखा गया, निकल का वेट घट होंगे तो भी इनू बाद च रखा गया। की रीज़न है इहदा, उन्हें इन्ना क रीज़न किया भी हाँ जी कोबाल्ट का जोड़ा वेट है ना वो घट ही है, असी गलत कैलकुलेट किया होया, तो इन फ्यूचर ये सही हो जाएगा, जोड़ा कि नहीं होया। हले तक भी सानू पता है भी कोबाल्ट का वेट ज़्यादा ही होंगे, निकल का वेट घट ही होंगे। तो इदां दी काफ़ी सारी गलतियां सीगियां, लिख लो इनू फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया। हुण मेंडलीव्स के टेबल दे विच ना इन्ना की बहुत है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ NCERT ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਇਹ NCERT ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਨੇ। ਤਾਂ NCERT ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ NCERT, ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ठीक है, चाहे तुसी ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट के नाल देखो, चाहे तुसी सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट के नाल देखो, NCERT इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन्हें गल दिमाग च रहेगी। हुण आपां आने चलो चैप्टर के सब तो इंपॉर्टेंट टेबल वाल। अज आपां उहदी इंट्रोडक्शन बेसिक चीज़ां चंगी तरह नाल पढ़ांगे। ठीक है, हैडिंग लिख लो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई गेस ये 7th पीरियोडिक टेबल है हुण तक जिन्ने भी आपां पढ़े ने, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर इसका दूसरा नाम बहुत जिहड़ा यूज़ होंदा है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनू कई बार बोहर टेबल भी बोलते हैं। हाँ जी, इन्हू कई बार बोहर टेबल भी बोलते हैं। बोहर टेबल, बोहर दे
SPDF शेल के अकॉर्डिंगली बनया हुआ टेबल है, तेनों बोहर्स टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर बोहर्स टेबल। हुण ना इस टेबल की सब तो इंपॉर्टेंट गल, इस तो पहले जिन्ने भी टेबल बने सीगे वो हर टेबल दे विच ये सोचा जा रहा सी कि एटॉमिक मास ही सब कुछ है। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली एलीमेंट की प्रॉपर्टीज़ डिसाइड होंदियां ने, है ना। जिमें लोथर मेयर ने भी यही दसिया सी भी एटॉमिक मास के हिसाब नाल ही वॉल्यूम चलती है ना। तो लोथर मेयर ने यही रिलेशन दसिया, उहदे बेसिस ते मैंडलीव ने भी एटॉमिक मास ते टेबल बनाया। पिछले सारे टेबल इस चीज़ को वर्क प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि एटॉमिक मास ही सब तो इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास ही सारिया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है। बट ठीक है, एक एक्सपेरीमेंट होया मोजलेज एक्सपेरीमेंट। मोजले एक्सपेरीमेंट ने यह प्रूव कराया कि एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट नहीं है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि एटम के कोल किन्ने प्रोटॉन्स ने, किन्ने इलैक्ट्रॉन्स ने, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन वो कोल किन्ने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, क्योंकि मास के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन काउंट होंगे है ना। ठीक है, तो मोजलेज एक्सपेरीमेंट तो पता लग गया कि एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है, ना कि एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर है जिहड़ा प्रॉपर्टीज़ नूं डिसाइड करता है, जिहड़ा दसदा भी मैटैलिक करैक्टर किहो जिहा होएगा, बॉन्डिंग किहो जी होएगी। एटॉमिक नंबर ही सारा कुल मिला के खेल एटॉमिक नंबर का है। ठीक है ना। तो मोजले के एक्सपेरीमेंट तो बाद सारा कुछ एटॉमिक नंबर वाल शिफ्ट हो गया। फिर जिहड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये पहला टेबल है जिहड़ा एटॉमिक नंबर ते बेस्ड है, ना कि एटॉमिक मास ते। ठीक है, हुण जिवें मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ आपां लास्ट क्लास च पढ़िया सीगा, तो मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ यही कह रहा सीगा, ठीक है, कि जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने वो डिपेंड अपॉन द एटॉमिक मास। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलीमेंट डिपेंड अपॉन द एटॉमिक मास, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, दे आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। बट जिहड़ा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, ये कह रहा है कि पीरियोडिक फंक्शन जिहड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये सब तो बड़ा डिफरेंस है। पहली गल तो थोड़ी सबजैक्टिव एक मार्क का क्वेश्चन बन जाता होंगे ये। ठीक है, हुण चलो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली टेबल अरेंज हो गया, सारा कुछ हो गया। फिर ये टेबल भी इन्ना सिस्टमैटिक बनया होया है, इनू इन्ने 4 ब्लॉक्स, तुहानूं याद होगा मैं लास्ट टू लास्ट क्लास जी फस्ट क्लास सी पीरियोडिक फंक्शनस पीरियोडिक क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स की, वो अंदर मैं पीरियोडिक टेबल ही समझाया सीगा, ब्लॉक्स समझाए सीगे, है ना। तो इन्ना सिस्टमैटिक अरेंज किया होया पीरियोडिक टेबल, इनू ब्लॉक्स डिवाइडेड किया होया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, याद है ना। ठीक है, इनू ग्रुप्स डिवाइडेड किया होया, इनू पीरीयड्स डिवाइडेड किया होया। ग्रुप दी प्रॉपर्टी सिमिलर है, पीरीयड दी प्रॉपर्टीज़ एक पैटर्न च चेंज हो रही ने। तो बहुत ही सिस्टमैटिक टेबल बनया अपना, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट, कोई बहुत गलतियां नहीं है ये अंदर। ठीक है ना। तो आप पहला तो सिंपल चीज़ तो ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये अंदर लिखो मड़ जा। दिस टेबल इज बेस्ड अपॉन, देखो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं इनू, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, बोहर्स टेबल भी बोलते हैं। तो किसी भी टर्म च आ सकता है, थोड़ा कला कला नाम याद होना चाहिए। लिखो मड़ जा। दिस टेबल इज बेस्ड अपॉन मोजलेज एक्सपेरिमेंट, MOSLEY। दिस टेबल इज बेस्ड अपॉन मोजलेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मोजले वॉज बॉम्बार्डिंग मतलब कोलाइड करवा रहा, एक दो चीज़ों का टक्कर होना इन्हों बॉम्बार्डिंग बोलते हैं। किसी की चीज़ से किसी चीज़ को मारना वो भी बॉम्बार्डिंग हो गया, वो टक्कर ही रही है अल्टीमेटली। ठीक है, मोजले वॉज बॉम्बार्डिंग वेरियस एलिमेंट्स with electrons in order to find their atomic number. In order to find their atomic number. He noted that the frequency of X-ray produced
is directly proportional to atomic number of the element. The frequency of X-ray produced is directly proportional to atomic number of the element. एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लो, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी। टेंशन ना लो, इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इनफैक्ट मोजले लॉ शायद थोड़ा पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये फिर भी कई बार ना एक अद्धा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता होंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस दे एक्सपेरीमेंट ते बेस्ड है, तो मोजले दे एक्सपेरीमेंट ते बेस्ड है। अदरवाइज ये किते भी थोड़ा आएगा नहीं, कोई टेंशन नहीं है यदि Z है एटॉमिक नंबर। बस एक बार फिर भी मैं दसना चाहता सीगा, नोट कर लेंदे, ठीक है। हुण आपां ने कुछ मेन चीज़ां वो करनियां ने। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये कोई हैडिंग नहीं है, बस फटाफट लिखी चलो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बिल्कुल जिवें मैंडलीव पीरियोडिक लॉ सीगा, मैंडलीव दा पीरियोडिक लॉ की सीगा, है ना, कि जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ने एटॉमिक मास ते डिपेंड करदियां ने। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की कह रहा है जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ने एटॉमिक नंबर से डिपेंड करदियां ने। सही है, लिखो माड़ा जिहा की है, अकॉर्डिंग टू इट properties of elements are periodic functions. Properties of elements are periodic functions of their atomic number. Properties of elements are periodic functions of their atomic number. ठीक है जी। कुछ होर चीज़ों के बारे में डेफिनेशन लिख लेने। पीरियोडिसिटी की हुंदा है, देखो प्रॉपर्टीज़ का बार बार रिपीट होना इनू पीरियोडिसिटी बोलते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज़ का बार बार रिपीट होना इनू पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तब पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन लिख लो, रेपिटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़, repetition of similar properties of element, after certain regular interval of time. Repetition of similar properties of elements after certain regular interval of time is known as periodicity. Is known as periodicity. ठीक है, अगे लिखो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। मतलब चलो ठीक है जी, प्रॉपर्टीज़ ना रिपीट होंदियां ने, होंदियां एवें क्यों हो रहा, इक्को प्रॉपर्टीज़ थोड़े थोड़े टाइम बाद रिपीट क्यों हो रही ने। जिवें हर एलीमेंट का एटॉमिक नंबर अलग है, तो सब दी प्रॉपर्टीज़ अलग क्यों नहीं हैगियां। समझ रहे हो ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर हैगा 3, है ना। तो फिर भी लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ मिलदियां जुलदियां ने, एवें क्यों होया। तो वो एक सिंपल जिहा रीजन है भी एटॉमिक नंबर के अंदर सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ होंदी है कन्फिगरेशन। वो भी मैं पहले लैक्चर च दस्सिया सी भी जिहड़ा हुण जिवें एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक का जिहड़ा पहला ग्रुप है वो सारिਆਂ दी लास्ट कन्फिगरेशन बिल्कुल सेम है, सारिਆਂ दे अंदर लास्ट च S1 आउंदा है, याद है ना। तो लास्ट कन्फिगरेशन जो रिपीट होंदी है ना, उदों प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंदियां ने, ठीक है। हुण जिवें असीं कैमिकल बॉन्डिंग अगला चैप्टर पढ़ांगे तो असीं गल नोट करांगे भी यार कोई कितने बॉन्ड्स बना रहा है, कोई किमें जुड़ रहा है, कोई इलैक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, ये सारा कुछ ही कन्फिगरेशन पर डिपेंड करता है। हुण जी कन्फिगरेशन ही थोड़े थोड़े टाइम बाद रिपीट हो जाएगी। हुण जिवें लीथियम की कन्फिगरेशन की होंदी है 1s2 2s1, सोडियम की कन्फिगरेशन च लास्ट च हुंदा 3s1, ठीक है। पोटैशियम की हुंदा 4s1, तो सब च S1 आ रहा है लास्ट च।
तो जे सिमिलर कन्फिगरेशन रिपीट हो रही है तो प्रॉपर्टीज़ भी रिपीट होणगियां। सिंपल जी गल, ठीक है। ये हले सिर्फ मोटा मोटा मैं दस रहा उपरों उपरों, जो कैमिकल बॉन्डिंग पढ़ांगे तो तुसी आप ही थोड़ा पता लग जाएगा कि जिमें दी कन्फिगरेशन है उवें दी ही प्रॉपर्टीज़ है। हुण जिहदी कन्फिगरेशन ही सिमिलर है, देखण नूं बिल्कुल इक्को तरह की है, किसी च भी P5 है, किसी होर एलीमेंट च भी P5 ही है, तो कन्फिगरेशन ही सिमिलर है तो प्रॉपर्टीज़ अपने आप सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी च लिखो, रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी इज reason of periodicity is repetition of reason of periodicity is repetition of similar electronic configuration, repetition of similar electronic configuration of elements, similar electronic configuration of elements after a regular interval of time. A repetition of similar electronic configuration of elements after regular interval of time. कुछ टाइम बाद कहते भी जो कुछ टाइम बाद जिमें प्रॉपर्टीज़ कन्फिगरेशन रिपीट हो रही है तो प्रॉपर्टीज़ भी रिपीट होणगियां, ठीक है। हुण आपां पीरियोडिक टेबल अपना मेनली स्टार्ट करते हैं। पहला बेसिक जी चीज़ां, ये तो कुछ डेफिनेशन सीगियां जिहड़ियां आ जांदियां ने भी वॉट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वॉट इज़ पीरियोडिसिटी। तो प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही ने, इनू पीरियोडिसिटी बोलते हैं। क्यों रिपीट हो रही ने? क्योंकि कन्फिगरेशन रिपीट हो रही है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की कहता है कि जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ने वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करदियां ने, ना कि एटॉमिक मास से। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की कहता सीगा कि जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ने वो एटॉमिक मास से डिपेंड करदियां ने। सही है जी। चलो हुण आपां पीरियोडिक टेबल के बारे मेन पॉइंट्स लिखते हैं। पहला कुछ पॉइंट्स लिख लो फटाफट, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 horizontal rows known as periods, 7 horizontal rows known as periods and 18 vertical columns known as groups. 7 horizontal rows known as periods and 18 vertical columns known as groups. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ना मेंडलीव वांगू एवं सब ग्रुप्स नहीं बनाए, ठीक है। आप सिंपली ग्रुप्स बनाए 1 2 3 4 5 अप टू 18 और पीरियड्स बनाए 1 2 3 4 5 7 इस तरह ना, ठीक है ना। अगे लिखो अगली लाइन, इट फॉलोज Bohr's scheme of classification of elements. It follows Bohr's scheme of classification of elements. Therefore, it is known as Bohr's periodic table. Therefore, it is also known as Bohr's periodic table. ठीक है। अगली लाइन लिखो, बोहर्स स्कीम केड़ी? SPDF है ना। SPDF के अकॉर्डिंगली ही चल रहा है सारा पीरियोडिक टेबल। लैफ्ट से सारे एस वाले ने ये भी मैं एक बार थोड़ा जिहा दस्सिया सीगा पहली क्लास के अंदर। अगे लिखो, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। सब तो पहले नंबर पर लिखो एस ब्लॉक। छोटी जी चीज़ दसदा मैं, ठीक है। आ देखो, जेड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिन्हें पहले लैक्चर नहीं लाया उन्होंने वास्ते है जी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का दिखता सीगा, याद होगा थोनों।
इस तरह नाल, है ना। तो दो नीचे डिवाइड करे हुए ने अलग तो। हुण जिहड़े पहलियां दो ग्रुप्स ने, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, इन्हां नूं मिला के असी बोलते हैं एस ब्लॉक। जिहड़े लास्ट 6 ग्रुप्स हैं, लास्ट 6 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 13 तो लैके ग्रुप नंबर 18 तक, इन्हां नूं बोलते हैं पी ब्लॉक। देखो 1 2 इधर आ गया, 13 तो 18 इधर आ गया, तो 3 तो लैके 12 तक, ग्रुप नंबर 3 तो लैके ग्रुप नंबर 12 आ जिहड़े एस और पी दे विच आ नीचे वाले एलीमेंट्स ने, इन्हां नूं कहंदे ने डी ब्लॉक। और जिहड़े बाहर कड्ढे हुए ने, इन्हां नूं कहंदे ने एफ ब्लॉक, फालतू ब्लॉक। ठीक है, एफ का मतलब फालतू नहीं है, उदा याद रखने लई कर लो एफ ब्लॉक। इन्हां दी सानूं किते जरूरत भी नहीं पैंदी, तो इन्हां नूं फालतू भी बोल दिंदे हैं कई बार मजाक मजाक च। ठीक है, तो एस ब्लॉक आ गए 2 ग्रुप्स, पी ब्लॉक आ गए 6 ग्रुप्स, डी ब्लॉक आ गए 10 ग्रुप्स, एफ ब्लॉक च कोई ग्रुप्स डिवीजन नहीं है इदां दी। ठीक है, इहदा समझ आ रहा है। हुण इहदा भी मैं एक रीजन दस दिना। देखो एस जिहड़ा ऑर्बिटल होंदा, याद है ना एस ऑर्बिटल च किन्ने किहड़े किहड़े इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने। जिन्हें पहला लैक्चर नहीं लाया प्लीज़ एक बार ध्यान नाल सुन लिओ। एस ब्लॉक च या तो एस ब्लॉक च एक इलैक्ट्रॉन भरिया जा, एस ग्रुप च एक इलैक्ट्रॉन भरिया जा सकता है, एस सब शैल च या 2 भरे जा सकते हैं। यही होंदा ना। जिहड़ा ग्रुप नंबर 1 है वो सारे इहो ਜਿਹੇ ने जिन्हां दे लास्ट च S1 आंदा है, किसी च 1S1 आंदा है, फिर 2S1 आंदा है, फिर 3S1 आंदा है लास्ट च। जे तुसीं इन्हां दी कॉन्फिगरेशन लिखोगे ना, मैं जिवें एग्जाम्पल चकदा इत्थे सोडियम है, सोडियम जिवें एस ब्लॉक का पहले ग्रुप का एलीमेंट है 11, ਇਹਦੀ कॉन्फिगरेशन लिखो, ਇਹਦੀ कॉन्फिगरेशन आएगी 11 के हिसाब नाल 1s2 2s2 2p6 3s1। चैक करो ये लास्ट च S1 आ रहा है ना, तो जिथे भी इस च 2 ही आ सकते हैं, ज़्यादातर जिन्होंने लास्ट च S1 आए या जिन्होंने लास्ट च S2 आए, तो इस ब्लॉक च 2 ही ग्रुप्स हैं। पी च किन्ने आ सकते हैं, P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है, P4 भी हो सकता है, P6 तक हो सकता है। इस करके पी ब्लॉक च 6 ग्रुप्स हैं। पूरा पहला ग्रुप है जोड़ा पी ब्लॉक का, यानी कि ग्रुप नंबर 13, वो सारा यह जिहा है जिहदे लास्ट च P1। ठीक है, जोड़ा लास्ट है ग्रुप नंबर 18, वो सारा यह जिहा जिहदे लास्ट च P6 आउंदा है। गल समझ आ रही है। हुण डी किवें हो सकता है, डी 1 तो लैके किन्ने तक हो सकता है 10 तक आ पिया, 3 तो लैके 12, 3 है D1 वाला सारा, फिर D2 वाला सारा, फिर D3 वाला, फिर D4 वाला, एवें लास्ट च D10 वाला। समझे। एफ च किन्ने भर सकते हैं 1 तो लैके 14 तक, तो आ पहला एफ च इत्थे एवें 14 एलीमेंट्स ने, थल्ले भी 14 एलीमेंट्स ने। ठीक है ना। तो ये अगर किसी को भुल जाए भी पी ब्लॉक च किन्ने ग्रुप्स होंगे हैं, तो बस पी बारे सोचो भी पी च किन्ने होंगे हैं। पी च वध तो वध 6 हो सकते हैं, तो पी ब्लॉक च भी 6 ग्रुप्स हैं। ठीक है, चलो पहला आप हुण इन्हां बारे थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, थोड़ी जी स्पीड खिंच लो फटाफट। ठीक है, एक होर गल इंपॉर्टेंट है, लास्ट इलैक्ट्रॉन जदों जिहड़े शैल च जांदा है, शैल च उन्होंने कहते हैं वेलेंस शैल, है ना। वेलेंस शैल तो अंदर वाले शैल नूं कहते हैं पेनल्टीमेट, PEN पेन अल्टीमेट। ठीक है, आखिरी शैल नूं वेलेंस शैल बोलते हैं, उस तो अंदर वाले शैल नूं पेनल्टीमेट शैल बोलते हैं, उस तो भी अंदर वाले शैल नूं एंटी पेनल्टीमेट शैल बोलते हैं। हुण मान लो किसी का लास्ट इलैक्ट्रॉन चौथे शैल च है, तो चौथा शैल हो गया वेलेंस शैल, तीजा शैल हो गया पेनल्टीमेट शैल, और दूजा शैल हो गया एंटी पेनल्टीमेट शैल। ये क्यों दस रहा मैं, हूँ जो मैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक इन्हों की डेफिनेशन लिखाऊंगा ना, तो ये वर्ड यूज़ होएगा पेनल्टीमेट एंटी पेनल्टीमेट, तो यह मतलब यही होंगे। ठीक है, वेलेंस शैल मतलब आखिरी शैल। ठीक है, आखिरी शैल किसी का भी आखिरी, जिमें सोडियम देखो, हूँ मैं सोडियम की कॉन्फिगरेशन लिखी सी, आ पहला शैल है, 2s ते 2p दूजा शैल है, 3s तीजा शैल है, सब तो बड़ा शैल तीजा है ना, तो यह वेलेंस शैल है 3, पेनल्टीमेट शैल है 2, एंटी पेनल्टीमेट शैल है 1। ठीक है जी, चलो इस ब्लॉक तो स्टार्ट कर दें, लिखो माड़ा जा। व्हेन इस ब्लॉक किहड़ा है, वैसे तो लैफ्ट मोस्ट है। ठीक है, पता ही है S1 तो S2 होंगे ने, जिन्हों का आखिरी इलैक्ट्रॉन S च भरदा है, उन्होंने इस ब्लॉक एलीमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, लिख लो यही डेफिनेशन है यदी। व्हेन इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, when inner shells are completely filled,
एंड वैलेंस इलैक्ट्रॉन, वैलेंस इलैक्ट्रॉन, वैलेंस दी ब्रैकेट च लिख लो लास्ट इलैक्ट्रॉन और डिफरेंशिएटिंग इलैक्ट्रॉन, कई बार डिफरेंशिएटिंग इलैक्ट्रॉन भी बोल देंगे ने। वैलेंस इलैक्ट्रॉन ब्रैकेट च की नाम है होर लास्ट इलैक्ट्रॉन या फिर डिफरेंशिएटिंग इलैक्ट्रॉन, मतलब सारे का सेम है आखिरी। एंड वैलेंस इलैक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सबशेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस सबशेल ऑफ आउटरमोस्ट शेल, valence electron enters into s subshell of outermost shell, comma, then it is known as s block element, then it is known as s block element। ठीक है, अगली लाइन च लिखो एस ब्लॉक कंटेन टू ग्रुप्स G1 एंड G2, G1 मतलब ग्रुप 1, G2 मतलब ग्रुप 2। एस ब्लॉक कंटेन्स टू ग्रुप्स G1 एंड G2। अगली लाइन च लिखो, अच्छा पीरियोडिक टेबल जी पोजीशन कितने है, बिल्कुल लैफ्ट ते, आ बिल्कुल लैफ्ट वाले दो एस ब्लॉक ने, यही पॉइंट लिखना है। थर्ड पॉइंट लिखो इट इज़ प्रेजेंट इन लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऑफ पीरियोडिक टेबल, it is present in leftmost corner of periodic table। आगे लिखो जनरल कॉन्फिगरेशन, अगला पॉइंट है जनरल कॉन्फिगरेशन। जनरल कॉन्फिगरेशन की होंदा भी पूरे ग्रुप की कहे जी कॉन्फिगरेशन है। एक गल देखो पूरे ग्रुप च या तो S1 होएगा या S2 होएगा, यही होएगा ना। तो जे जनरल लिखना होवे, ठीक है, जनरल मैं लिख सकता भी S1 भी हो सकता है या फिर 2 भी हो सकता है, S1, 2। हुण S केड़ा जो भी ये शैल है तो मैं N शैल नंबर भी लिख देना, जिवें पंजवें शैल 5S1 5S2 कुछ भी हो सकता है, 3S1 3S2 मैं NS1 to 2 लिख सकता। इस तो पहला स्क्वायर ब्रैकेट IG, हुण ये स्क्वायर ब्रैकेट IG वाली कॉन्फिगरेशन का तरीका हले अपना डिस्कस नहीं होया, ये कल वाली लाइव क्लास से डिस्कस होएगा। ठीक है, हाले सिर्फ जिमें जनरल कॉन्फिगरेशन लिखी है स्क्वायर ब्रैकेट IG मतलब कि इनर्ट गैस या नोबल गैस। NS1 भी हो सकता है या फिर 2 भी हो सकता है। N की है शैल नंबर, जिमें पंजवा 5S1 5S2 हो सकता है, 6S1 6S2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जनरल मतलब सबनों कट्ठे एक नाम दो, है ना। तो मैं शैल में N ही रहने दिता, कुछ भी भर लो, N 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। S1 भी होंगे 2 भी होंगे, तो मैं 1 2 लिखता। इस तो पहला इनर्ट गैस वाला कॉन्सैप्ट आप कल लाइव क्लास डिस्कस करांगे भी किमें लिखनी होंगी है। ये हले तक आप कॉन्फिगरेशन एवं लिखनी डिस्कस नहीं की सी, तो इनू एवं याद कर लो। ठीक है, मैं कल समझाऊँगा, सारा समझ आ जाएगा। अच्छा जोड़ा ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 वो क्या कॉन्फिगरेशन होएगी IG। ग्रुप 1 तो S1 ही भरेगा, तो ग्रुप 1 हो गया IG NS1। अगर मैं ग्रुप 2 की गल कर दे, ग्रुप 2 च पहला इनर्ट गैस भरेगी, फिर NS2। ग्रुप 2 के सारे दी S2 है ना। प्लीज़ लैक्चर नंबर पहला देख लो जिन्होंने नहीं पता लग रही है चीज़ा। ठीक है, सिर्फ IG वाला कॉन्सैप्ट नवा है। अच्छा एक ही होंगे एल्कली मैटल्स, ग्रुप 2 क्या बोलते हैं बई, एल्कलाइन अर्थ मैटल्स। इस ब्लॉक के अंदर सिर्फ मैटल्स ने, कोई नॉन मैटल नहीं है। और मैटल भी ये एवें दे मैटल ने जोड़े सॉफ्ट होंगे ने। वैसे तो असी इस ब्लॉक से साडा एक पूरा चैप्टर है +1 का ही, इस ब्लॉक एलीमेंट्स उस भी पढ़ांगे बहुत कुछ। हले फिर भी आप उपरों उपरों एक आइडिया लगा लीए इस चैप्टर को। नोट कर लो फटाफट जो मैं लिखा होया। एक लाइन भी लिख लियो, दिस ग्रुप कंटेन्स ओनली मेटल्स, दिस ग्रुप contains only metals having fixed valency। मतलब जिमें सोडियम है इस ग्रुप का एलीमेंट, सोडियम हमेशा ही +1 शो करता है, वो वैलेंसी फिक्सड है। कैल्शियम हमेशा ही +2 शो करता है, वो वैलेंसी फिक्सड है। तो जोड़ा इस ब्लॉक है ग्रुप नंबर 1 एंड 2 ये मैटल्स ने जिन्हों की वैलेंसी फिक्सड है, बदलती नहीं।
ठीक है। सेकंड लिखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सेकंड लिखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक इस लिखो when inner shells are completely filled, when inner shells are completely filled and differentiating electron and differentiating electron enters into and differentiating electron enters into p subshell of outermost shell. Differentiating electron enters into p subshell of outermost shell, comma, then it is known as p block element. It is known as p block element. अगली लाइन से लिखो it contains 6 groups. It contains 6 groups. किड़े ग्रुप 13 तो लेके ग्रुप नंबर 18 तक, G13 to G18. G13 तो लेके G18 तक. आगे लिखो it is present at rightmost corner of periodic table. It is present at rightmost corner of periodic table. आगे लिखो general configuration is मतलब इन्हों की कॉन्फिगरेशन की होएगी. देखो पी ये अंदर 1 तो लैके 6 तक भर सकते, तो इतने 1 to 6 पी भर सकते. एन पी 1 to 6 कोई शैल नंबर तो होएगा ही पी का. NS2 इनर्ट गैस, इन्हों की जनरल कॉन्फिगरेशन है इनर्ट गैस NS2 NP1 to 6. आगे लिखो this block contains metals, non-metals as well as metalloids. This block contains metals, non-metals as well as metalloids. आगे लिखो they can show variable valency. They can show variable valency. आगे लिखो their physical state can be solid, liquid or gas. Their physical state can be solid, liquid or gas. ठीक है जी. ਹੁਣ डी ब्लॉक तो F ब्लॉक के बारे आप क्लास डिस्कस करांगे, लाइव क्लास कल नूं लगेगी लाइव क्लास. ठीक है, अज तुसी ये सारा एक बारी रिकॉर्ड कर एक बारी नोट कर लो अपनी नोटबुक्स ते चंगी तरह नाल, पूरा लैक्चर रिवाइज कर लो. जे किसी नूं नहीं कुछ पता लग्या तां WhatsApp ते मेरे तो इहदा डाउट पुछ लो. ठीक है जी, बाकी आप कल दी क्लास मिलते हैं. थैंक यू.